Good morning, everybody. Welcome to Lawsico's Daily News Analysis. Today is 30th May 2020, and the topics that we'll be covering for today are India-Australia relations. So next week, there's supposed to be a bilateral meeting between India and Australia, and we will be talking about what can be expected from the meeting. Secondly, GDP forecast data. So yesterday, the Statistical Office of India has released certain data about GDP, and we'll be talking in detail about what GDP is and what the data is. And variation in testing contracts. This is related to COVID, and we'll be covering something about COVID every day in our news analysis because it's the biggest thing that is happening these days, and it's certainly important from the exams point of view also. So the first news for today, India-Australia relations. तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ये इसको डिस्कस करना अभी क्यों इम्पोर्टेंट है. तो नेक्स्ट वीक यानी कि जून की फर्स्ट वीक में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का समिट होने वाला है. कोविड के आने के बाद इंडिया के काफी समिट हुए हैं. अभी रिसेंटली G20 भी हुआ था. However, all these are taking places virtually, यानी कि ऑनलाइन हो रहे हैं ये सारे समिट्स because as you all know, traveling is prohibited and it's in the best interest of everybody that not a lot of traveling takes place between the countries because इससे कोविड के स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसीलिए वर्चुअल मीटिंग्स होंगी. तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्चुअल समिट होने वाला है. इट्स अ बायलेटरल समिट. बायलेटरल समिट मतलब खाली 2 देश पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, दैट इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे और हम ये बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस है इस मीटिंग से. So the first expectation that we can talk about are that a mutual logistic support agreement will be signed. So it is hoped by both the countries that this mutual logistic support agreement is signed. तो ये agreement basically military dealings के बारे में होता है और डिफेंस के जो एरिया है उसमें cooperation बढ़ाने के बारे में है. So it is hoped that this agreement will be signed and defense cooperation between these two nations will be strengthened by signing of this agreement. तो इस agreement में और क्या-क्या हो सकता है कि जो military exercises होती हैं between countries, for example इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत ही बड़ी नेवी की exercises होती है, यानी कि जल की जो आपकी फोर्सेस होती हैं उनकी एक्सरसाइजेस होती है, उसे बोला जाता है ऑसी इंडी और वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है. पानी में की जाती है, कभी इंडिया के रीजन में होती है, कभी ऑस्ट्रेलिया में होती है. एंड इट इज होप दैट ये वाला जो अग्रीमेंट है इसके अंदर इसी टाइप की चीजों के बारे में डिस्कशन होगा कि किस टाइप की मिलिट्री एक्सरसाइजेस किस समय किस एरिया में कंडक्ट कराई जा सकती हैं. और इन मिलिट्री एक्सरसाइज से डेफिनेटली दोनों कंट्रीज की जो आर्मीज है, नेवी फोर्सेस है, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है. Second expectation from this meeting summit is that 2+2 talk format will be followed. Now what will be 2+2 talk formats? So usually if you see, usually just the leaders of the nations go out, meet each other and talk. For example, India China के बीच में अभी पिछले साल म्यूचुअल ऐसे टाइप का एक bilateral summit हुआ था in which Chinese President Xi Jinping came here in India. And then there were talks between Indian Prime Minister हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में और Xi Jinping के बीच में बातें हुई थी. So this was bilateral summit between the two nations. However, only Prime Minister to Prime President level of talk happened. That is, only the main top level leaders of the country talk. However, ये 2+2 जो format की बात हो रही है, इसमें secretary level से लेकर defense minister से लेकर जो टॉप लेवल लीडर्स हैं उनकी बात होगी. तो द स्कोप ऑफ टॉकिंग, द स्कोप ऑफ मीटिंग एंड द स्कोप ऑफ कंटेंट विल बी एक्सपैंडेड अगर ये वाला फॉर्मेट फॉलो किया जाए एंड इट इज होप्ड दैट दिस इज फॉलोड. थर्डली, हेल्थ, फूड और एजुकेशन के सेक्टर में कोऑपरेशन की बात की एक्सपेक्टेशन हो रही है. नाउ दीज आर द एरियाज व्हिच अफेक्ट द पीपल. फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री एक्सरसाइज जब होती है तो उसमें नॉर्मल लोग जो है हमारा आप जैसे, वी आर नॉट वेरी हाईली कंसर्न. I mean, it's good for us in an indirect way that if need arises, our armies
our forces should be trained. However, we are not directly concerned with the military exercise, but we are directly concerned with these areas: health, food, education, and it is expected that these areas are talked about. और इन एरियाज में जब कोलैबोरेशन होता है, नई टाइप की थिंकिंग आती है, जैसे कि अगर ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो नए नए बिजनेस किस तरह से उभर रहे हैं, फूड के एरिया में बात हो रही है कि डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक किस टाइप का हेल्थ पैकेज पहुंचाया जाए जिससे उन्हें बाहर निकलने की कम जरूरत पड़े. इफ ऑस्ट्रेलिया हैज वर्कड ऑन इट एंड वी engage with them and develop a collaboration of techniques with them, then it can be very helpful for both the nations, and which is why this is a major issue that we hope to look forward to. Fourthly, pandemic control lessons. तो दुनिया के कई बहुत कम देश ही होंगे जिन्होंने इस कोविड-19 पैंडेमिक को इफेक्टिवली डील किया है. हालांकि पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया है, लेकिन इफेक्टिवली डील किया है. डेथ्स के नंबर कम है. Australia is one of those countries which has effectively dealt with the pandemic. और उसकी तकनीक को कंट्रोल्ड अडॉप्टेशन का नाम दिया जा रहा है, दैट इट हैज डन द कंट्रोल ऑफ पैंडेमिक थ्रू समथिंग कॉल्ड कंट्रोल्ड अडैप्टेशन. नाउ वी होप टू लर्न फ्रॉम देम, वी होप टू लर्न व्हाट अ कंट्रोल्ड अडैप्टेशन इज. वी होप टू लर्न कि कितने टेस्ट उन्होंने करे, क्या स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाए, उसको हम यहाँ अपने इंडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, एंड फ्रॉम दैट वी कैन गेट पैंडेमिक कंट्रोल लेसन्स. एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशंस इसलिए भी बढ़ जाते हैं because there are a lot of people, Indians, who have helped in Australia in controlling this pandemic. For example, there are two Indian scientists, Dr. Kshitij Kapoor and S.S. Vasan, who are professors in the University of Melbourne and who have played a major role in this pandemic control. Therefore, India, learning from them, learning from Australia about all these lessons, will play a major role towards our own development. Then in the sector of higher education, so Australia has a lot of universities which are ranked top in the world, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न हो गई, साउथ वेल्स हो गई, इस टाइप के कई यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे जो आईवी लीग्स के जो कॉलेजेस होते हैं उनको टक्कर देती हैं. नाउ हाउएवर दीज यूनिवर्सिटीज आर पब्लिक फंडिंग और कोविड के टाइम पे उनका चलना काफी मुश्किल हो गया है. वो किस टाइप से अभी अपने आप को डेवलप कर रही हैं, क्या क्या सुझाव दे रही हैं जिसको इंडिया को अपनाना चाहिए, वो भी इस समिट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है. एंड वी होप दैट ऑल दीज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस समिट आर फुलफिल्ड. अब अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस की बात की जाए, सो हिस्टोरिकली दे वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. आई मीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वर नॉट वेरी कंपैटिबल कंट्रीज. जैसे क्योंकि उनकी डेमोग्राफी डिफरेंट है, क्लाइमेट डिफरेंट है, कल्चर बहुत ही डिफरेंट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का. पॉपुलेशन की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की एंटायर पॉपुलेशन हमारे खाली नेशनल कैपिटल रीजन की पॉपुलेशन के बराबर होगी. तो देख सकते हैं आप कि कितना डिफरेंस है दोनों देशों के बीच में. लेकिन कोऑपरेशन बढ़ रहा है और ये अच्छी ही बात है दैट इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज इज राइजिंग. 2014 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 28 years. तो 28 साल पहले राजीव गांधी ऑस्ट्रेलिया गए थे कोलैबोरेशन करने के लिए, और 28 साल बाद नरेंद्र मोदी वहां गए. एंड उसके बाद से अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स का आना जाना इंडिया में लग ही रहा है, एंड बायलैटरल रिलेशंस आर डेवलपिंग. Australia relationship with India is also very important because a quadrilateral is formed with the relationship of India with Australia. The quadrilateral means quad of four countries, that is India, Australia, US and Japan. तो ये चार कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशंस हो या आर्मी रिलेशंस हो, ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशन का भी काफी स्ट्रॉन्ग रोल है, which is why this whole bilateral meeting is looked forward to, and we should keep an eye on it from exams point of view also. Secondly, GDP figure. So before moving forward, let's discuss what GDP is. So GDP stands for Gross Domestic Product. अब इकोनॉमिक्स में काफी ऐसी फिगर्स होती हैं जो देश के विकास को मेजर करने के लिए काम आती है. GDP is one of them.
और भी फिगर्स होती हैं, नेशनल प्रोडक्ट भी होता है, नेट प्रोडक्ट भी होता है। तो लेकिन अभी हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में पूरे देश का जितना भी कंजम्पशन आया है, क्योंकि कंजम्पशन एसेंशियली आप हम जो कंज्यूम करते हैं उसको पाने के लिए हमें एक्सपेंडिचर भी करना पड़ता है, तो इसीलिए इसे एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो यहाँ से जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड किया जाता है। इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के लिए वेजेस, रेंटल, रेट ऑन कैपिटल एंड फर्म प्रॉफिट्स ऐड किया जाता है। एंड प्रोडक्शन मेथड को कैलकुलेट करने के लिए फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। So these are the 3 methods through which we can calculate gross domestic product. Now, what does the data say? So, because of this pandemic, we all know that economy is not performing very well. However, National Statistical Office ने अभी कल ही data release किया है, which is a provisional data, it's not final data, but still it's important to look at that. एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है एनएसओ जिसे कहते हैं, इट्स वन ऑफ द मेन एजेंसीज व्हिच गिव आउट दीज डेटा। सरकार की और भी एजेंसीज हैं व्हिच गिव आउट डेटा, हाउएवर एनएसओ को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, व्हिच इज व्हाई उसका डेटा भी इंपॉर्टेंट है एंड वी शुड हैव अ लुक ऑन इट। बिफोर लुकिंग ऑन दिस, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्लियर कर लेते हैं। सो वी टॉक्ड अबाउट जीडीपी। नाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड फॉर अ फिस्कल ईयर। What is fiscal year? So there is a normal year जो कि जनवरी से दिसंबर तक कैलकुलेट होता है, which we talk about in a normal day-to-day language conversations में. Then there is fiscal year which is used in economy. So fiscal year basically financial year भी जिसे कहते हैं, is calculated and starts from April, from the month of April and ends in the month of March. ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन करने के लिए आसान बना देता है चीजों को, एंड दिस इज द फिस्कल ईयर। नाउ टू डिवाइड दिस ईयर फर्दर सो दैट वी कैन कैलकुलेट आवर फिगर्स, इट्स डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स। सो 4 क्वार्टर्स जो होते हैं, यानी कि इस पूरे साल के 4 भाग जो होते हैं, वो पहला फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल टू जून, सेकेंड क्वार्टर होता है जुलाई टू सितंबर, थर्ड क्वार्टर होता है अक्टूबर टू दिसंबर एंड लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी टू मार्च, which is the current quarter that we will be talking about. So now that the figures that have been released recently are for the last quarter of fiscal year 2019-20, which ended in March 2020. Now the figures say that economic growth slowed to an 11-year low of 4.2% in fiscal year 2019-20. यानी कि पूरे फिस्कल ईयर की जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट है वो 4.2% है, और लेकिन ये जो ग्रोथ का रेट है ये पिछले 11 सालों की जो ग्रोथ रेट है उससे कम है। दिस इज अ ह्यूज ब्लो, बिकॉज 11 साल में थोड़ा थोड़ा डेवलप करके इट शुड हैव रिजन, बट इट हैज फॉलन टू एन 11-year low, which is a bad thing to have happened. It also says that final quarter, जैसा मैंने आपको अभी बताया, final quarter is January to March, and this is about 2020, January to March 2020. So expansion of GDP slumped to 3.1%, यानी कि GDP 3.1% और गिर गई जनवरी टू मार्च में. Final quarter growth was slowest in last 44 quarters. 44 again 11 साल में लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ सबसे कम थी. अब इफ वी टॉक अबाउट सेक्टर्स कि कौन कौन से सेक्टर्स ने कैसे परफॉर्म किया, तो एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हेल्प द लिटिल बिट. व्हाई? बिकॉज एज यू हैव सीन एग्रीकल्चर में एक्सपेंडिचर हो रहा है बिकॉज ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स हैजंट स्टॉप्ड इवन दो द शटडाउन हैज हैपेंड, बट एवरीबडी इज बाइंग फार्म प्रोड्यूस, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फार्म प्रोड्यूस खरीदने तो हम सब बाहर जा ही रहे हैं, इसलिए उसका एक्सपेंडिचर उतना कम हुआ नहीं है यूजुअल से. इवन दो उसका कॉस्ट जो है वो कम ही होता है, लेकिन एक्सपेंडिचर उतना कम नहीं हुआ है. सो एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर द सेवियर्स. माइनिंग सेक्टर हैज आल्सो हेल्प्ड विद द ग्रोथ रेट ऑफ 5.2%. तो पहले के मुताबिक अब इस अगर हम फिगर को पढ़ें तो माइनिंग सेक्टर पहले कितना ग्रो कर रहा था, पहले कम ग्रो कर रहा था या नहीं,
हो सकता है माइनिंग सेक्टर पहले से भी कम ग्रो कर रहा हो, लेकिन पिछले से अगर कंपेयर किया जाए फिर भी तो 5.2% का ग्रोथ रेट है माइनिंग सेक्टर। Then manufacturing sector contracted. This we can understand very easily because if the demand was only falling, people were not buying anything, then manufacture क्यों होती है चीजें? So manufacturing sector definitely contracted and shrinked by 1.4%. And it has also been said that the components of demand fell. So manufacturing sector basically इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि demand ही itself गिर रही थी, and जो components होते हैं demand के, consumption, investment, export, these fell because nobody expended their money on consumption, investment and export. अब ये तीन जो फैक्टर्स हैं इसकी बात हमने एक्सपेंडिचर मेथड में भी करी थी कि अगर जीडीपी कैलकुलेट करनी है एक्सपेंडिचर मेथड से तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स ही फैक्टर्स होते हैं, एंड दीज फैक्टर्स फेल, देयरफॉर जीडीपी हैड टू बी लो, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले सालों में जीडीपी में कितना डिफरेंस आता है। अब इसके बारे में लोग बात ये कर रहे हैं कि 2008 में भी रिसेशन हुआ था, कुछ इसी तरह की इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल स्थिति थी देश की वो इसी तरह की थी, रिसेशन था, पीपल वर लूजिंग देयर जॉब्स। लेकिन 2008 से 5 साल पहले का जो इकोनॉमिक डेटा था अगर उसको एनालाइज किया जाए तो वहां पे जीडीपी ग्रोथ 8% के लगभग थी, सो विच हेल्प्ड द नेशन रिकवर फास्ट। 2008 के आने वाले उसके आने वाले बाद के जो साल थे, in those years the country recovered fast because in earlier years the growth rate was 8%. Now what the problem with 2020 this year is that the GDP growth even in previous years to this year was also low. The GDP growth then also was around 4% or 3%, and therefore recovery from this fall, this low GDP will be very difficult. And this is why this is a concerning figure, which is problematic. Third news for today, variation in testing contracts. तो जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, we will discuss something about COVID every day because every day government is coming up with new policies and new laws and something or the other, and it's important to discuss all of those. Even though not everything will be relevant from exams point of view, but to be aware about them is important. So recent जो news है वो ये है कि testing तो COVID का जब पेशेंट पाया जाता है, its contacts are traced and those contacts are tested then later on. Now what is happening is that in certain states some less contacts are tested, and then in certain states more contacts are tested. This is a problem. तो ये डेटा एनालाइज किया गया कि कितने लोग टेस्ट होते हैं, and it was found that in the states जहाँ पे ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेस हुए और ज्यादा कॉन्टैक्ट टेस्ट हुए वहां पे कोविड के बढ़ने का रेट कम था। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला मोर शुरुआत में जब ये कोविड आ ही रहा था, मोर देन 40 पीपल वर ट्रेस्ड एज कॉन्टैक्ट्स एंड दे वर टेस्टेड, एंड फिर द पीपल हु वर टेस्टेड उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया। Therefore the growth rate of this disease, this pandemic fell in Kerala. अब तो बढ़ रहा है, लेकिन रीजन उसका एक ये भी पाया गया कि the more the people were tested, the less was the growth rate. Now states like Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Goa, Odisha, इन states में 75% से ज्यादा टेस्ट हुए, कॉन्टैक्ट ट्रेस हुए, एंड these states were those states जहाँ पे कम कोविड के बढ़ने का रेट पाया गया। Now there were certain other states, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 50% से भी लेस लोग को टेस्ट किया गया, वहां पे कोविड के बढ़ने का रेट हाई है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, गुजरात, इफ यू कैन सी these black areas, these are the areas which tested less contacts, and यहाँ पे ज्यादा रेट है बढ़ने का। So this is one of the factor that we should keep in mind if we write about COVID, that testing rate and variation in testing also resulted in the rise in number of people who have been found positive for this. This was all news for today. Now the first question is, who is the current Prime Minister of Australia? Malcolm Turnbull, Scott Morrison, Tony Abbott or Julia Gillard?
Take your time and answer. Thank you.